शर्मा जी, फाइनली आपका दिन आ ही गया। कौन है वो खुशनसीब? मैं क्या जानूं? वो तो मेरा हॉरोस्कोप कहता है कि आज जरूर शादी होगी। क्या आप भी शर्मा जी की तरह जनरल प्रेडिक्शंस पर भरोसा करते हैं? देन लॉग ऑन टू astrotalk.in। तो गुड इवनिंग पुनीत सर, कैसे हो आप? गुड इवनिंग श्रुति, आई एम डूइंग वेल। आप कैसे हो? मैं भी एकदम बढ़िया सर। Oh, good to connect with you. Let's see how it goes. हाँ, लेट्स कनेक्ट एंड सी हाउ इट गोस थ्रू। तो सर, very heartily congratulations and welcome on Pragati Success Stories. It's a very new initiative connecting various startups and their journey through all these years. So you are here to share your story about Astro Talk. So let's start the journey. तो Yeah. सर, सबसे पहले आप इससे पहले क्या करते थे और वो टर्निंग पॉइंट क्या था जब आपने एस्ट्रो टॉक शुरू किया? कैसे इसकी शुरुआत हुई? Okay, to keep it short, तो मेरा था क्या कि I was working with Nomura in Mumbai. तो it was an investment bank and वहाँ पे मैंने 2.5 साल जॉब किया and फिर मैंने जॉब छोड़ दिया to start something. तो तब मेरा प्लान था कुछ आयुर्वेदा में स्टार्ट करने का and फिर वो करने की कोशिश की but it didn't work out and then I tried couple of things. तो कुछ 8-10 महीने किया and सारे पैसे खत्म हो गए whatever I saved in my 2.5 years of job and फिर I was not able to do anything and then फिर थोड़ा सा डिप्रेस रहने लग गया मैं and it took me a while to come out of it and do something because उस time पे it was like कि I would keep staring at the walls and I would not understand कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए and then someone I took a bit of therapy from a friend only and he helped me to come back to Mumbai again and get a job to at least get some positivity in life कहीं पे busy हो जाऊंगा तो at least ये negative thoughts कम हो जाएंगे. So that's what I did. I then came to Mumbai, did a small job for a month, and then I got a job in BNP Paribas, which was equivalent to Nomura. ठीक है, तो वहाँ पे then I worked for around 8-9 months, and फिर जब थोड़े से पैसे इकट्ठे हो गए, then I again planned to start up, and I got together with a friend, and we thought of starting an IT services company. ठीक है, तो and now I had to resign and put down my papers and then go to start my startup and उस दिन क्या हुआ मैंने रेजिग्नेशन लेटर फटाफट टाइप तो कर दिया बट वो सेंड बटन पे क्लिक नहीं हो रहा था जस्ट बिकॉज ऑल दोज थॉट्स ऑफ माय पास्ट एक्सपीरियंस वर हॉन्टिंग मी कि दोबारा से वैसा ना हो जाए फिर से ऐसे ना हो जाए कि बैंकरप्ट हो जाऊं बिल्कुल जैसे पहले हुआ था तो and then fortunately there was a colleague of mine who was senior to me at BNP and she came over and asked me कि भाई तेरे मुंह पे ये क्या हो रखा है तो कैसा सा बन के बैठा है क्या हुआ तुझे एंड मैंने उसको बताया कि ऐसा कुछ नहीं है मतलब मैं रिजाइन करना चाह रहा हूँ और मेरे को डर सा लग रहा है थोड़ा सा एंड आई टोल्ड द बैक स्टोरी एंड देन शी सेड कि वो एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करती है एंड शी कैन हेल्प मी इन मेकिंग अ डिसीजन ठीक है तो उस टाइम तक आई वाज लाइक हार्डकोर जो होते हैं ना लोग जो हेट करते हैं एस्ट्रोलॉजी को सो आई वाज वन ऑफ देम बिकॉज माय पेरेंट्स believe in astrology big time. They don't do anything without astrology. Okay, so and I was always against my mom कि क्या है कैसे है and तो पहले तो मैंने उनका मजाक उड़ाया कि आप यहाँ बैठ के अंधविश्वास वाली बातें कर रहे हो ये सब मेरे सामने मत करो मेरे को जीने दो तो then she said कि कोई बात नहीं तू मेरा सुन ले उसके बाद तू जो करना है करियो तो मैंने कहा चल ठीक है यार जो करना करो आप भी बता दो जो बताना है तो and she looked at my chart and said कि your next 2 years are very promising and उसके बाद क्या होगा कि आपका पार्टनर छोड़ देगा and then you will find it difficult to run your company and probably it will take 1.5 years time to get back on track again and तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं था उसकी बात पे बस just that I got an assurance कि हाँ resign कर दो तो I just resigned and came ठीक है तो then I started this IT company which did really well and हमारी कुछ 45 लोगों की टीम हो गई थी and we were scaling like anything very good projects were coming in and everything तो but फिर हुआ क्या 1.5 साल के बाद my partner came to me and said कि उसको मजा नहीं आ रहा ये काम करके and he wants to do something else or rather he'll do a job and I told him कि भाई क्या हो गया सब सेल चल रहा है and he said कि बस मजा नहीं आ रहा तो फिर क्या फायदा सही चलने का and फिर मैंने उससे पूछा he said कि कोई प्रोडक्ट करना है सर्विसेज नहीं करनी तो मैंने कहा ठीक है तो you start a product I'll run this company so then he started something and it didn't work out so फिर वो अगले 6 महीने तक वो ओवरऑल 2 साल के आसपास उसने छोड़ दिया एंड तब तक मुझे लग रहा था कि चलो कंपनी तो स्टेबल ही है इतना पर क्या फर्क पड़ता है बट
once he left, I realized that a lot of things were dependent on him, and फिर कंपनी डाउनवर्ड स्लोप पे जाने लगी, एंड एकदम से स्टीप डाउनवर्ड स्लोप पे जाने लगी, एंड आई कुड सी कि अब ये 4-5 महीने से ज्यादा नहीं चलेगी, बिकॉज वी डिडंट हैव दैट मच मनी इन द बैंक, एंड new projects were not coming in, all projects were not getting delivered, everything just came to standstill. And फिर मुझे याद आया कि मेरे को उस बंदी ने ऐसे बताया था ये छोड़ेगा ठीक है, एंड आई वाज आल्सो प्लानिंग टू डू सम प्रोडक्ट्स विद माय प्रीवियस पार्टनर, सो दोनों चीजें थी दिमाग में. तो देन आई कॉल्ड हर अप, मैंने उसको बताया मैंने ऐसे ऐसे हुआ, एंड बात करते ही करते एक आइडिया आया मेरे मन में कि क्यों ना मैं एस्ट्रोलॉजी में ही कुछ स्टार्ट करूं, बिकॉज the prediction was not something which was very generic. Okay, so someone predicting that your partner would resign before even starting a company, before even having a partner, so that is something big, and it is just not something which anyone can predict or say or guess. ठीक है, तो मेरा बिलीफ बन गया था उसमें काफी स्ट्रॉन्ग, तो आई थॉट कि चलो लेट्स ट्राई समथिंग इन एस्ट्रोलॉजी. So that was the backstory of the concept of AstroTalk. So that was the reason I came into the field of astrology and thought of starting it. And just because the belief was created after a long term of hatred, so I knew everything which was going wrong in this industry, everything about astrologers who were fake, and everything which I've seen in my past, because my mother used to talk to all kind of astrologers. तो वो सारी नेगेटिव चीजें थी मेरे दिमाग में. आई न्यू व्हाट नॉट टू डू, एंड करना सिर्फ ये था कि अच्छा प्रोडक्ट बिल्ड करके कस्टमर एक्सपीरियंस का देना था. सो आई जस्ट वर्कड ऑन दैट, एंड आई थिंक कुछ ही महीनों में वी स्टार्टेड सीइंग सक्सेस. तो इनिशियली इट वाज अ बिट टफ, बट आई थिंक कुछ 1-1.5 साल हमें लगा उसमें टू गेट टू अ प्रोडक्ट मार्केट फिट, टू अंडरस्टैंड द मार्केट, बिकॉज मार्केट एग्जैक्टली नहीं पता था मुझे, कस्टमर की साइकी एग्जैक्टली नहीं पता था, and the right market product was not something which I was aware of, because there was no good product in the market at that time. So वो करने में थोड़ा टाइम लगा, but I think in the month of July or August 2018, that's where we reached to a product market fit. And उसके बाद we are scaling like anything. So we have been hiring people, we are onboarding astrologers, and spending a lot on marketing, giving the first session for free so that people can use our product and see for themselves whether it works for them or not. So my belief is if they get a good prediction for free once, they would definitely come back to us, because if it is creating value for them, they cannot stay away from the product. It is that addictive. So that's my story about AstroTalk. It was nice to hear. बहुत जल्दी रहती है, and in my known मेरे पापा भी थोड़े एस्ट्रोलॉजर है, उनको भी पता है इन आइडिया के बारे में, तो थोड़ा बहुत उनको भी पता रहता है, तो वो बताते हैं. तो ऐसी अलग ही दुनिया है, पता नहीं माने या ना माने, बट आपने जैसा कहा आपके रियल लाइफ में वो इम्प्लीमेंट हुआ, उससे फिर आपको इंटरेस्ट आया, तो ये सुनने में काफी अच्छा लगता है. तो सर आपने जब इनिशियली स्टार्ट किया था तब कितने जने थे आपके साथ, और कैसे फंडिंग रेज करी या अपने इन्वेस्टमेंट से इसको आगे बढ़ाया, क्या जर्नी थी? तो फंडिंग तो ऐसा की जरूरत नहीं थी, बिकॉज जो मेरा पहला स्टार्टअप था, आईटी कंपनी जो चला रहा था मैं, सो आई हैड मेड गुड मनी फ्रॉम दैट. ठीक है, तो वही पैसा मैंने आई इन्वेस्टेड इनटू बिल्डिंग दिस प्रोडक्ट. एंड एट दैट टाइम तो मैंने क्या किया, तो टेक प्रोडक्ट बनाने की नीड थी तो मैंने क्या किया, उसी कंपनी से आई टुक ऑल द बेस्ट डेवलपर्स एंड आई शिफ्टेड देम टू AstroTalk. ठीक है, तो इनिशियल टीम वही थी, सारी टेक टीम थी, एंड ऑल द ऑपरेशंस वर्क I used to do it on my own, and I actually wanted to do customer support on my own instead of hiring someone at that time, because ऐसा था कि मुझे लोगों से बात करना ऐसा लग रहा था कि बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड द मार्केट, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं किया था एस्ट्रोलॉजी को पहले. तो आई वांटेड टू टेक दैट ओपिनियन फ्रॉम कस्टमर्स एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर्स कि उनके पेन पॉइंट्स क्या हैं एंड हाउ वी कैन सॉल्व इट बेटर देन एनीवन एल्स. तो फिर उस काम में मैं करता था, एंड वो आई थिंक वही मैंने कहा ना 1-1.5 साल जो लगा, तो उसमें आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, hundreds of customers. I took their time, spoke to them personally on call, and understood. तो सर अभी जो एस्ट्रोलॉजर वाली फैमिली है आपकी एस्ट्रोटॉक पे, उनसे आप कभी मतलब रियल लाइफ में मिले, या कितने एस्ट्रोलॉजर्स आपसे कनेक्टेड है, और क्या उनके मतलब अलग अलग न्यूमरोलॉजी, पाम स्टडी ऐसा करके कुछ अलग अलग इनकी स्टडीज भी होती है, तो उनमें से आपने क्या क्या ट्राई कर रखा है? नहीं, मुझे देखो आता तो कुछ नहीं है, मेरे को थोड़ी सी वैदिक एस्ट्रोलॉजी आती है खुद से, वो भी मैंने स्टार्टिंग में सीखी थी जस्ट टू अंडरस्टैंड कि क्या बता रहे हैं ये लोग. तो आई डिड अ कोर्स, स्मॉल कोर्स एट दैट टाइम, बट मैं इतना अच्छा
ऐसा नहीं है कि मैं प्रेडिक्ट कर लूंगा, अगर मैं बैठ जाऊंगा वहां पे तो सब भाग जाएंगे कस्टमर्स। तो अबाउट being connected to astrologer or meeting them, so I have not met a lot of them, क्योंकि सब लोग all those astrologers are available in all parts of India, अलग अलग छोटे छोटे गाँव से कस्बों से लोग हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सब दिल्ली एनसीआर से हैं या मैं उनसे मिल सकूं। तो जो दिल्ली एनसीआर से हैं उनको कई बार हम अपने ऑफिस में इनवाइट कर लेते थे पहले, तो उनसे मैं मिला हूँ। अदरवाइज हाँ, बात करने की जब तक बात आती है तो मैंने कॉल पे आई थिंक 50% एस्ट्रोलॉजर से बात करी होगी आज तक। तो आई ट्राई टू कीप इन टच विद देम, कभी कभी आई जस्ट टेक देयर टाइम एंड स्पीक टू देम एज वेल टू अंडरस्टैंड कि उनके क्या पेन पॉइंट्स हैं और कैसे हम सर्व कर सकते हैं, ताकि वो उससे क्या होता है ना, एकदम ग्राउंडेड रहते हैं हम कि ग्राउंड लेवल पे चल क्या रहा है, समझ आती हैं प्रॉब्लम्स। तो वैसे हाँ, आई एम कनेक्टेड एंड आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल भी रहता है, उनके लिए भी रहता है, मेरे लिए भी रहता है। उनके लिए इसलिए रहता है कि वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स मुझे बता पाते हैं, मेरे लिए इसलिए रहता है कि मुझे वो प्रॉब्लम्स पता लगेंगे तो मैं सॉल्व कर पाऊंगा। तो सर आपका इन ऑफिस भी है एस्ट्रो टॉक के लिए, मैंने सोचा आप सिर्फ ऑनलाइन ही काम करते होंगे या डिजिटली, तो इन ऑफिस भी आप प्रोवाइड करवाते हैं? नहीं, सब कुछ ऑनलाइन ही है, तो फिजिकल प्रेजेंस कुछ नहीं है। सो वी डोंट अलाउ आवर कस्टमर्स टू मीट द एस्ट्रोलॉजर्स आल्सो। तो एस्ट्रोलॉजर हमारे ऑफिस में नहीं बैठते हैं, दे वर्क फ्रॉम होम एंड कस्टमर्स को भी अलाउड नहीं है, सब कुछ ऑनलाइन होता है। एंड ऑनलाइन में 2 ऑप्शंस हैं, चैट और कॉल का मेनली है, इसके अलावा रिपोर्ट का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि इसके बाद अगर टाइम नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना क्वेश्चन डाल के छोड़ना है, तो वो डाल के छोड़ सकते हैं रिपोर्ट कुछ देर में। I have gone through your sites and your Quora, you write articles as well. मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं जो लिंक्डइन पे भी आप शेयर करते रहते हैं, तो काफी मैंने Quora पे भी देखा है आपको और लिंक्डइन पे भी देखा, उसमें आपकी सारी जो पुरानी चीजें है या जो लाइफ एक्सपीरियंस है आप वही बताते रहते हैं। एंड देन आई विजिटेड योर साइट आल्सो, तो उसमें एस्ट्रो मॉल करके भी एक प्रोडक्ट आपने निकाला है जिसमें इतनी सारी चीजें हैं, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है या क्या टेस्टिमोनियल आ रहा है? आपके पास कोई अच्छा रिव्यू आया है जो लोग पॉजिटिव रिस्पॉन्स जैसे शेयर करते हो वापस कि हाँ मेरी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है और उससे मैं काफी खुश हूँ एस्ट्रो टॉक पे बात करके, या ऐसा कुछ? या सो मैं ना काफी सारे कस्टमर से भी कनेक्टेड हूँ लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम के थ्रू, तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर से कनेक्शन नहीं है, कस्टमर से भी है। सो जब भी मेरी किसी से बात होती है तो मैं उनको बोल देता हूँ प्लीज सेंड ए कनेक्शन रिक्वेस्ट ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम। तो उनसे भी मेरी काफी बार बात होती रहती है, तो कभी उनको भी मैंने सबको रिक्वेस्ट किया हुआ है कभी आपको कोई प्रॉब्लम लगे प्रोडक्ट में, यू जस्ट लेट मी नो। तो वो लोग अपने इनपुट्स देते रहते हैं मुझे, सो उसमें से मुझे कुछ पॉइंट अच्छे लगते हैं, देन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ठीक है। तो कस्टमर से कनेक्शन रखना भी उसके थ्रू काफी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और आपने कहा कि लिंक्डइन वगैरह पे पोस्ट करना, तो एक्चुअली मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता है, टू शेयर माई थॉट्स एंड माई स्टोरीज। तो मैं कॉलेज टाइम पे भी करता था, आई यूज्ड टू राइट ए ब्लॉग एट दैट टाइम। तो बस अभी एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, लिंक्डइन एंड कोरा बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे हम लिख सकते हैं, लोगों तक पहुँचता है एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है वहाँ से भी। एंड काफ़ी लोग मुझे मैसेज पूछते भी रहते हैं कि इसमें क्या करें, सो आई एम काइंड ऑफ एडवाइजिंग अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट स्टार्टअप्स ऑल्सो। तो वो सब भी चलता रहता है, मुझे अच्छा भी लगता है वो सब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए। अभी ऐसा है कि अगर एस्ट्रो टॉक अच्छा चल रहा है तो वो सिर्फ हार्ड वर्क एंड वो नहीं होता, वो तो कहीं ना कहीं लक भी हमें मिला होता है। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ अगर इफ आई गिव बैक टू सोसाइटी समहाउ, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे उसके लिए भी, तो उसमें भी आई कॉन्ट्रीब्यूट। देन योर क्वेश्चन वाज कि रिव्यूज कैसे हमें मिलते हैं। सो आई गेट एब्सोल्युटली amazing reviews. So there are a few customers, you can check my Instagram handle, I've uploaded a lot of stories, तो जिसमें customers have texted me and said कि उनका कैसे जब they were in उनकी लाइफ में जब ट्रबल था तो कैसे एस्ट्रो टॉक helped them to get out of it, how it created that hope in their mind and gave them required motivation to get past that phase. Because होता क्या ना, जब whenever we are in stress or depression, we never think of good days ahead of us. We just think about bad days and we kind of just circle inside it. But if someone comes to you and can tell you कि हाँ सब कुछ अच्छा हो जाने वाला है आपके साथ, then you start kind of believing कि हाँ कुछ अच्छा होने वाला है, होगा, and they give you a date also कि इन दिनों बाद हो जाएगा, then you feel very positive. And वो चीज जो है ना, वो it is giving a lot of, it is helping a lot of people. So that's why they like Astro Talk, and then they send me a lot of messages, and Play Store also talks about a lot about this. And फिर आपने Astro Mall के बारे में पूछा। Astro Mall कैसे था कि so Astro Mall was not something which we thought of doing initially, but it
it was actually demanded by our customers only. So what happens in astrology is it is not just about prediction, it is also about remedies. So astrologers कुछ remedies देते हैं, and then these customers have to perform that remedy. Sometimes they have to buy some gemstone, the drugs or whatever. And so whenever they would suggest this thing, the customers would come back to us, and then they would request कि हमें ये remedy आप provide कर सकते हो, क्योंकि they don't trust anything outside, because there's a lot of fake content available online or even offline. So they said कि आप पे अगर हम trust करते हैं, तो if you start providing all this, then it would be really helpful for us. So that's the reason the concept of Astromall came into picture, and we thought कि हम ही ये चीज source करके यहाँ पे लोग, if anyone wants to buy, they can buy. So it is not like कि we keep recommending things. So anything which is recommended by astrologers, they have an option to buy from here. They can buy offline also. सारी रेमेडीज देते हैं, उनके जो भी सिचुएशन के अनुसार होता है, तो एस्ट्रोमल उसके लिए काम का है. अच्छी चीज है, काफी सारी चीजें है उसमें भी मैंने देखा था उसको विजिट करके. तो साइट मैंने पूरी विजिट करी थी, देन आपकी प्रोफाइल भी देखी थी. तो सर आपकी अभी इस दौरान जो कोरोना की सिचुएशन है, उसमें भी काफी पीपल काफी डिप्रेस्ड है, या कह सकते हैं कि उनके करियर से रिलेटेड भी काफी इश्यूज आ रहे हैं. तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं कि जिससे वो हैप्पी रह सके, या ऐसा कोई सजेशन जो यंगस्टर या यूथ को आप देना चाहे, या स्टार्टअप की लाइन में देना चाहे? I think this is actually, if we look at the positive side of it, although there's a lot of negative, which is which has surrounded us in the time of COVID. We cannot go out, so human is a social animal. If it is not going out and we are not meeting people, it creates a lot of negativity which earlier used to go away, which is not going away. But still, if we try to look at positive, we are getting enough time in our life to acquire new skills. We are not wasting time in traveling to office or maybe school, college, whatever. And there is ample time which we get during this time कि जिसमें हम नई skills acquire कर सकते हैं. And I think we should all do that to some extent. अपने जिस चीज के लिए भी आप passionate हो, जो चीज आपको अच्छी लगती है, उसमें you start spending more time. Try to utilize this time, because COVID is not going to stay forever. वो कुछ time के लिए है. तब तक if you start acquiring these skills, it would actually help you along later on in many ways. तो I think वो सबको करना चाहिए. This is one positive which I can say. I think बस यही है मेरा. तो इसमें तो I think this is what I would like to say कि नई नई चीजें सीखो, connect with a lot of people and talk to them, understand कि क्या वो अच्छा कर सकते हैं. पहले it was like going and meeting people was always difficult, but now it is easy to connect on LinkedIn or Insta and just talk to them, exchange a few words and understand how things are going. Social media has changed our life too far, we can expect. Correct. So it's a very nice thing if we use positively, but there are also drawbacks as well. So it's up to you how you use or come up with that situation. So sir, it was really nice knowing about your story and your experience and advices. So sir, it's very new initiative, and my last question is, how was your experience on Pragati Success Stories? I think it is good. It was very crisp and short, and I think I like something which is short and to the point. So I have given a few more interviews, but I've always suggested to keep it very short so that you can engage. The customers can engage with it better. If it is very long, no one has patience to look into these things. And I wish you all the best. So you have already done this in the COVID time. You have started experimenting with your passion. You want to talk to people and take interviews. I wish you all the best, and I hope you do really well, and then you invite me again for another round. Sure sir, कभी real में भी बुलाएंगे, and then we can connect really well startups on a Zoom call or some online conference or workshop. Surely I have some more aims towards Pragati Success Stories, not limited to YouTube. So let's discuss the future plans in some coming years. Let's see what happens. So it was really nice, and thank you for your time and support. All the best, sir. And Thank you. stay safe and stay healthy, sir. It was really nice, sir. Thank you. All the best. So guys, if you like the video, you can also use AstroTalk to know your prediction, and links are given in the description box. If you like the video, please do like, share and subscribe my channel. You can also find me on Instagram with the page name Pragati Success Stories. Thank you.